Assalamu alaikum students. Today the date is 18th of July and the day is Saturday. Welcome to you all in online class. Today we will discuss about lesson number 3, Earth as a planet for the human beings, and the topic is natural spheres of life. In the previous lesson we had discussed different natural environment, that what makes the natural environment. There were physical landscape, climate, animals and vegetation. It combinedly formed a natural environment. Then in the next lesson we discussed that what makes the earth habitable. So in that we had discussed that there are three basic reasons which makes the earth habitable. These were temperature, oxygen and presence of water on the earth. इसलिए ज़मीन तमाम टाइप की जो लिविंग क्रिएचर्स हैं उनके लिए बेहतरीन हैबिटेट है. रेस्ट ऑफ द प्लैनेट्स डू नॉट हैव दीज basic items. Before moving to the lesson, let's discuss the objectives. In this lesson we will learn various spheres of the natural environment and their role in sustaining life on the earth. Dear students, you could see here the picture. All four natural spheres of life of earth are being shown here. This is the atmosphere, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर एंड द फोर्थ वन इज बायोस्फीयर. ये चारों के चारों जो स्फीयर्स हैं इनमें से अगर हम बायोस्फीयर को साइड पर कर दें तो एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर ये तीनों काम करते हैं फॉर बायोस्फीयर. ओके, इन द नेक्स्ट वी वुड सी दैट व्हाट इज मेंट बाय दीज स्फीयर्स. Students, first we will discuss about atmosphere. As you could see in the picture, there are different type of layers in atmosphere. There is an envelope of different gases, water vapors and dust particles which surrounds our earth. It is called atmosphere. इनके क्या क्या aspects हैं? These gases are nitrogen, oxygen, carbon dioxide, water vapors and dust particles. Oxygen is the most important gas due to which life is possible on the earth. Carbon dioxide is the gas which the planets absorb and release oxygen in return. कार्बन डाइऑक्साइड को एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इसको प्लांट्स जो है एब्जॉर्ब करते हैं और जब वो इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं तो उसके रिटर्न में वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं और ऑक्सीजन जो है वो लिविंग क्रिएचर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और यही ऑक्सीजन जो है वो ज़मीन को एक बेहतरीन हैबिटेबल बनाता है फॉर ऑल लिविंग क्रिएचर. नेक्स्ट है देयर इज़ ओजोन टू विच शील्ड्स आवर अर्थ फ्रॉम द डेंजरस अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन. स्टूडेंट्स, यू मस्ट हैव सीन हमारी जो ज़मीन है इसको एक एनवेलप, आप समझ सकते हैं कि एनवेलप ने एक कवर किया हुआ, एक लेयर है जिसने इसको कवर किया हुआ है. क्योंकि सनलाइट अगर डायरेक्टली ज़मीन के ऊपर आते हैं तो इट कैन बी वेरी वेरी डेंजरस फॉर ऑल टाइप ऑफ लिविंग क्रिएचर्स ऑन द अर्थ. तो ओजोन लेयर को बहुत सारी जो गैसेज हैं, दूसरी गैसेज जो हैं वो इसको डिस्टर्ब कर रही हैं, इसको ख़त्म कर रही हैं डे बाय डे, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ है. हाइड्रोजन गैसेज जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, या हम यूज़ कर रहे हैं HCF सी गैसेस जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें हमारी जो ओजोन लेयर है इसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं. तो हमें ज़मीन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करनी चाहिए. हमारे एनवायरनमेंट के अंदर वो तमाम चीज़ें हमें रिमूव कर देनी चाहिए जो इस ओजोन लेयर को डिस्टर्ब कर रही हैं, या इसको ज़मीन के ऊपर ये जो लेयर है इसके अंदर बहुत बड़ा शिगाफ पड़ चुका है जो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है. तो हमें इसको कम करने के लिए अपना रोल प्ले करना होगा. The second sphere of earth is lithosphere. Lithosphere ज़मीन का जो हिस्सा होता है. The surface area of our earth is about 510 million square kilometers. About 29% of this area is comprised of land. यानी ज़मीन का जो हिस्सा है जिस पर हम इंसान रहते हैं वो 29% है. This is called lithosphere and it is the portion on which the man lives. अब इस पोर्शन के ऊपर क्या क्या चीज़ें हैं? There are mountains, plains, forests and deserts on the lithosphere which provide habitats for different plants, animals and the human beings. Lithosphere is comprised of different types of rocks in which minerals are found. Human beings utilize these minerals in industries. पहाड़ जो ज़मीन के अंदर मौजूद हैं इनके अंदर बेशुमार मिनरल्स मौजूद हैं जो हम अपने बेशुमार कामों में इस्तेमाल करते हैं.
There is soil on the lithosphere in which the natural vegetation flourishes and human being grow crops. क्रॉप्स के बिना, प्लांटेशन के बिना तो डेफिनेटली ना तो हमें ऑक्सीजन मिल सकती है, ना हमें अपना फूड मिल सकता है। तो लिथोस्फीयर वो स्फीयर ऑफ अर्थ है जिसके ऊपर ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट करती है और यहीं पे वो तमाम यूटिलिटीज मौजूद हैं जिसकी वजह से ह्यूमन लाइफ बरकरार है। द थर्ड स्फीयर ऑफ अर्थ इज हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रो मीन वाटर एंड स्फीयर हाफ राउंड शेप। Hydrosphere, about 71% of the Earth's surface is comprised of water in different shapes. अब ये shapes कौन सी हैं? इसमें मौजूद है oceans हैं, rivers हैं, lakes हैं, canals हैं, different streams हैं, इसमें different type इसमें आ जाती हैं। This is called hydrosphere, यानी वो sphere जिसके ऊपर पानी मौजूद है। ये 71% की तादाद में हमारे पास मौजूद है। Human being get fish from the hydrosphere. It is hydrosphere from where the water vapors enter the atmosphere by the process of evaporation. इसमें आप देख लें कि ये evaporation का process हो रहा है, यहाँ पर मौजूद है। यही पानी जो हमारे पास समुद्रों में मौजूद है, यही पानी evaporate होकर ऊपर चला जाता है, हल्का ऊपर हो जाता है, evaporate हो जाता है। evaporate होके उसके बाद condensation का process start होता है और condensation के बाद precipitation, और प्रेसिपिटेशन जो है उसके नतीजे में हम दोबारा से अंडरग्राउंड वाटर हासिल करते हैं थ्रू आवर वाटर पंप्स एंड वाटर टैंक्स। Alright student, so hydrosphere from where the water vapors enter the atmosphere by the process of evaporation. These water vapors turn into clouds, ये जो condensation का process है, by the process of condensation and produce rain which is beneficial for all forms of life on earth. जी, दिस इज बायोस्फीयर। बायोस्फीयर दिस इज द लास्ट स्फीयर ऑफ द अर्थ। इट इज स्फीयर ऑफ लाइफ। यहाँ पे ये जो बाकी तीनों स्फीयर्स हैं ये सारे के सारे बेस्ड हैं इस स्फीयर पे, यानी ये इस स्फीयर के लिए काम करते हैं, बायोस्फीयर के लिए। इट इज द स्फीयर ऑफ लाइफ कंप्राइज्ड ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। इट इज डिपेंडेंट अपॉन द अदर थ्री स्फीयर्स। यहाँ पे अगर हमें ऑक्सीजन चाहिए, लिथोस्फीयर भी यहाँ पर मौजूद है, हमारे पास हाइड्रोस्फीयर भी इस बायोस्फीयर के लिए ज़रूरी है, एटमॉस्फेयर भी बायोस्फीयर के लिए ज़रूरी है। तो ये तमाम जो स्फीयर्स हैं, तमाम तीनों स्फीयर ये बायोस्फीयर्स के लिए काम करते हैं। मीन्स के तीनों स्फीयर्स कंबाइनली मिलकर बायोस्फीयर को एग्जिस्ट करने में हेल्प करते हैं। जी स्टूडेंट, दिस इज एक्टिविटी टाइम। हियर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी फॉर यू। You have to count in your surrounding that how many trees or plants are around you or in your house. आपके घरों में भी हो सकते हैं, आपके इर्द गिर्द भी हो सकते हैं। आपने वो सारे काउंट करने और काउंट करके उनको अपने किसी नोटबुक में उसको ऐड करना है। मेक अ लिस्ट ऑफ काइंड्स नेम्स ऑफ दीज प्लांट्स या ट्रीज। जितने भी प्लांट्स हैं, फ्लावर्स हैं, ट्रीज हैं, जो चीज़ भी आपको मिल रही है आपने उन सबकी एक लिस्ट बनानी है और पॉसिबल हो तो उनके नेम्स लाजमी राइट करें या उनके सैम्पल्स भी आप ले सकते हैं। What do we get from these plants or trees? क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं। आपके घर में जो प्लांट है उसके ऊपर कोई आपको नज़र आ रहा है कि किसी एनिमल ने उसके ऊपर अपना, किसी बर्ड ने अपना उसके ऊपर घर बनाया हो, या हम इन प्लांट से या इन ट्रीज से क्या हासिल करते हैं। द नेक्स्ट, मेक अ लिस्ट ऑफ यूजेज ऑफ प्लांट्स और ट्रीज। पेस्ट और ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स और ट्रीज ऑन A4 sheet and name them. Okay students, so this was all.